Hello everyone, welcome back to Summarise and Memorise. So this is the continuation of the series Discrete Mathematical Structure or simply DMS. So today this is lecture number 2 on integer arithmetic. Now in this lecture we are going to cover what is relatively prime integers, modular arithmetic, set of residue, congruence, residue classes and operations in ZL. So let's understand each of these terms one by one. So what do we mean by relatively prime numbers? So prime numbers are those numbers जिनके factor ही सिर्फ दो होते हैं, या तो फिर one या फिर वो खुद. So basically they are not divided by something else except one in itself. Similarly, relatively prime, यहाँ पे रिलेटिव वर्ड आ गया, मतलब कि हम यहाँ पे दो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो दो नंबर्स रिलेटिवली प्राइम तब कहलाएंगे जब उन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, मतलब कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा. तो उन दो नंबर्स को फिर मैं बोल दूंगी कि दैट दीज टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम और को-प्राइम. For example, 16 and 21, these both are co-prime. Why? Because they don't have anything in common except the 1. Okay. Note. So this is a very important note which is new to you क्योंकि relatively prime numbers we already know what they mean. तो अगर मुझे दे रखा है कि भाई a and b दो numbers हैं which are relatively prime, so they satisfy a equation and that equation is a linear equation in two variable. So basically ax plus by will be equal to the GCD of a and b. In this case, since a and b are relatively prime, the GCD is going to be 1. So this is the equation which this will satisfy. Now x and y can be anything, right? Because हमने past class में पढ़ा है that linear equation in two variable have infinite solution. It has a straight line graph. तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो अपने मन से, y अपनी वैल्यू खुद एडजस्ट करके निकाल लेगा, ठीक है? So the most important part is that a and b, if they are relatively prime, then that is going to satisfy this equation. Okay. So now let's move on to the modular arithmetic. तो अब हम मॉड्यूलर्स पढ़ रहे हैं, मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, तो उसका पहले सिंबल देख लेते हैं. So this is the symbol which we represent. Modular arithmetic is simply the division, पर इसका आउटपुट एक क्वेश्चन नहीं पर रिमाइंडर होता है. मतलब कि डिवीजन वो जिसका आउटपुट क्वेश्चन हो, मॉड्यूलर अरिथमेटिक वो जिसका आउटपुट एक रिमाइंडर हो. तो प्रोसेस आपको वही करना है, आपको डिविडेंड अपॉन डिवाइजर ही करना है, बट दिस टाइम द आंसर विल बी अ रिमाइंडर एंड नॉट द क्वेश्चन. अब क्योंकि आंसर एक रिमाइंडर है तो बस इसके टर्म्स चेंज कर दिए, वही बात है, बस टर्म चेंज कर दिया है. तो फॉर एग्जाम्पल like here a is any integer and n should be a positive integer and r should be a non-negative. Obviously remainder can be 0 positive and a divisor has to be a positive integer. It can't even be 0. Why? Because not defined हो जाएगा. अब इसमें जो काम की बात होती है वो ये है कि यहाँ पे जो a अपॉन n कर रहे हैं जिसका आंसर एक रिमाइंडर आएगा, जिसे मैंने डिनोट किया है छोटे r से, ठीक है? इसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक मॉड्यूलर में हम n को डिवाइजर ना बोल के मॉड्यूलस बोल देते हैं, बस नाम चेंज कर दिया और कुछ नहीं. सिमिलरली हम r को रिमाइंडर ना बोल के रेसिड्यू बोल देते हैं. जैसे कि आपको मम्मा के घर पे आप अपने खुद के घर पे आपका अलग नाम है और आपकी नानी के घर पे आपका अलग नाम है, दैट्स ऑल. सो डिवाइजर का डिवीजन के टाइम नाम डिवाइजर होता है और इधर मॉड्यूलर के टाइम n का नाम होता है मॉड्यूलस. सारी बातें सेम है. देखो अब आप 27 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2. 36 को 12 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा 0. -18 को, ना दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन, तो आप जब -18 को 14 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का 4 से. -18 अपॉन 14, तो ये माइनस को तो अलग छोड़ो, इतने को सॉल्व करो तो इट विल बी 4, बाहर माइनस साइन आ गया. Now you must understand that r should be a non-negative. So basically r cannot be a negative number. So what to do? यहाँ तो remainder अपना negative आ गया. So to make it positive, you just have to add the modulus. So in this case, our modulus is 14. So we have to add the modulus to it. So our final remainder will be 10. Okay.
So the only thing which we are doing is add the modulus if in case you are getting remainder as negative. सिमिलरली टी वाला देख लो, तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट विल बी माइनस का 7. सिंस रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव यू हैव टू ऐड द मॉडुलस टू इट, सो इट विल बी 3. So 3 is my final answer. So that's all about modular arithmetic. I hope अभी तक आपको को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं समझ आया होगा, और इन ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी समझ आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सेट ऑफ रेसिड्यू क्या होता है. So this is the third topic. Now I am going to make you understand. अब नाम देखो, नाम से समझो ये क्या था, सेट ऑफ रेसिड्यू. रेसिड्यू क्या है, अपना रिमाइंडर है. तो सेट ऑफ रेसिड्यू क्या हो गया कि रेसिड्यू के काफी सारे नंबर्स आ गए. सो दिस इज अ सेट जहां पे जो अंदर वैल्यूज हैं दीज आर नथिंग बट दी वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर. सो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो सेट ऑफ रेसिड्यू को हम ये बोल सकते हैं कि ये एक सेट है जिसमें रिमाइंडर्स की सारी पॉसिबल वैल्यू लिखी जाती हैं. अब रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज का मतलब, रिमाइंडर में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? हाँ है. लॉजिकली बताओ क्या रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? आंसर इज नो. सो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. दैट्स व्हाई जो सेट ऑफ रेसिड्यू होता है उसका ही फॉर्मूला होता है. उसे हम Zn से तो रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें हम वो सारी वैल्यू लिखते हैं रिमाइंडर की जो कि पॉसिबल है. पॉसिबिलिटी हम तब निकाल पाएंगे जब हमें डिवाइजर पता होगा, क्योंकि अगर डिवाइजर पता होगा तो हमें ये पता है कि डिवाइजर से एक कम तक रिमाइंडर में आ सकता है. तो ये जो देखो Zn में जो n है ना, दैट n इज नथिंग बट द मॉड्यूलस और द डिवाइजर, एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी बोलो सेम ही बात हुई. तो अगर आपको पता रखा है कि भाई ये डिवाइजर है या ये मॉड्यूलस है, आप सिंपली सेट ऑफ रेसिड्यू निकाल सकते हो. आप सिंपली लिख सकते हो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू. इट्स दैट इजी, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल Z2 है तो रिमाइंडर कैन बी 0 और 1. 6 है तो रिमाइंडर कैन बी फ्रॉम 0 to 5. एंड अगर 11 है मेरा मॉड्यूलस तो रिमाइंडर कैन बी फ्रॉम 0 to 10. एनी वैल्यू इट कैन टेक. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड टॉपिक ऑल्सो. Okay, now we are going to talk about the congruence, one of the very important topic, congruence. अब हमने बचपन में congruent triangle पढ़ा है. congruent triangle का सिंपली मतलब होता है कि वो ट्राइंगल सिमिलर है. क्यों? क्योंकि उनमें कुछ तो सिमिलैरिटी है. सिमिलरली अगर मैं दो इंटीजर्स को congruent बोल रही हूं तो इनमें भी कोई ना कोई सिमिलैरिटी है. अब मैं ऐसे दो इंटीजर्स को congruent बोलूंगी जिन्हें, एक मिनट, अब समझो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है a, उससे मैंने डिवाइड किया n से, और मेरे पास एक नंबर है b, उससे भी मैंने डिवाइड किया n से. यहां मुझे मॉड्यूलस का आंसर मिला. मॉड्यूलस का आंसर मतलब कि मैं रिमाइंडर लिखने वाली हूँ. तो यहाँ मेरे को रिमाइंडर मिला r1 और यहाँ मेरे को रिमाइंडर मिला r2. अगर रिमाइंडर सेम मिलते हैं, दैट मीन्स इफ r1 इज इक्वल्स टू r2, आई कैन से दैट a and b आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू मॉड n. मतलब कि अगर मैं a का मॉड लेती हूँ n के साथ तो मेरे को सेम रिमाइंडर मिलेगा जो कि मैं b के टाइम मेरे को मिलेगा. Okay, so now let's see few of the example. So now I hope you got it that a mod m, that means इसका जो रिमाइंडर होगा that will be equal to b mod m. And तब मैं ये बोल सकती हूँ that a is congruent to b when you are taking mod of both with respect to the m, right? Now let's take few of the example. तो मैंने बोला कि 2 and 12 are congruent with the mod 10. तो 2 को डिवाइड करो 10 से, 12 को डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर निकालो. तो 2 divided by 10 रिमाइंडर विल बी 2. 12 divided by 10 रिमाइंडर विल बी 2. देखो रिमाइंडर सेम आ गए. ऑब्वियसली 2 and 12 are congruent. Similarly let's take the second example. तो यहाँ गिवन है कि अगर आप -8 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो सेम रिमाइंडर आएगा जो कि 2 को 5 से डिवाइड करने में आएगा. तो 2 डिवाइडेड बाय 5, इसका रिमाइंडर तो 2 ही होगा. एंड -8 डिवाइडेड बाय 5 विल बी -3. बट सिंस वी नो दैट द रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, आई हैव टू ऐड द मॉड्यूलस टू इट, सो इट विल बी 2. तो देख लो रिमाइंडर सेम आ गया. सो -8 and 2 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू mod 5.
Similarly, you can see third and fourth example. Now I hope you got what is relatively prime numbers, what do we mean by modular arithmetic, what are set of residue, and what do we mean by congruence. Let's talk about few of the properties. If I'm saying that A is congruent to B or B is congruent to A, it means the same. If I'm saying that A is congruent to B and B is congruent to C, मतलब कि A को M से divide करो, B को M से divide करो, C को M से divide करो, we are getting the same remainder. So obviously A and C are also congruent, and this is what our second statement say. Now third, fourth and fifth statement are very important with respect to the calculation. So I have been given two equations that A is congruent to B and C is congruent to D, and I have chosen the same modulus in both. So I am doing mod m in both the equation. Then I can perform addition and subtraction, and both things will be valid in congruence. So A plus C will be congruent to B plus D, or A minus C will be congruent to B minus D. So this becomes important. Now fourth and fifth are easy कि आप A और B congruent है तो उनको किसी भी constant से multiply करो, they will be still congruent, and आप किसी की भी power से उन्हें raise कर दो, they will be congruent, right? Now let's talk about the residue classes. Now residue classes, अभी हमने पढ़ा था set of residue, अब हम पढ़ने वाले residue classes. Sorry, yeah. So classes means बहुत सारे सेट, तो यहाँ पे बहुत सारे सेट आने वाले हैं, ठीक है. एंड बट यहाँ रेसिड्यू के सेट नहीं होंगे, यहाँ डिविडेंड के सेट होंगे. बट वो जो डिविडेंड के सेट होंगे ना, वहां हमें पता होगा कि हमारा रिमाइंडर क्या है, इसलिए हम इसे बोलेंगे रेसिड्यू क्लासेस. आई नो आपको क्लियरली समझ में अभी भी नहीं आया है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल. सो जैसे आपको सेट ऑफ रेसिड्यू निकालने के लिए सिर्फ n की वैल्यू चाहिए होती थी, दैट इज द डिवाइजर और मॉड्यूलस, तो आपका आंसर आ जाता था 0 से लेकर n-1. सिमिलरली अगर आपको रेसिड्यू क्लासेस भी निकालनी है ना, यू जस्ट नीड टू नो द वैल्यू ऑफ n एंड यू कैन फाइंड आउट द रेसिड्यू क्लासेस. तो अब अपन को n की वैल्यू दी है एंड दैट इज 5. तो अब क्योंकि मुझे n की वैल्यू पता है, तो आप बता सकते हो ना कि रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है. तो क्योंकि मेरा डिवाइजर 5 है, तो माई रिमाइंडर कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 5. ओके, तो इट कैन टेक ओनली n-1 तक की वैल्यू. तो अगर आपको ये पता है कि डिवाइजर मेरा 5 है और रिमाइंडर मेरा 0 है, तो आप क्या मुझे उन डिविडेंड की वैल्यूज बता सकते हो जिन्हें डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर 0 आएगा. मतलब कि वो x की वैल्यूज जिन्हें मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर आया 0. तो क्या वो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो? ऑब्वियसली इट विल बी -5, 0, 5, 10, 15 एंड सो ऑन. सिमिलरली क्या आप मुझे वो वैल्यूज बता सकते हो x की जिसे 5 से डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर आए 1? बता सकते हो. दैट विल बी -14, -9, -4, 1, 6 एंड सो ऑन. तो अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है, तो जल्दी से सोल्यूशन देख लो. तो ये वो डिविडेंड की वैल्यू है जिन्हें 5 से डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर आएगा 0. ये वो डिविडेंड की वैल्यू है जिन्हें 5 से डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर आएगा 1. ये वाली वो डिविडेंड की वैल्यू है जिन्हें 5 से डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर आएगा 2. इन्हें डिवाइड करने में आएगा 3 और इन सबको 5 से डिवाइड करने में मेरा रिमाइंडर आएगा 4. तो आपके पास कितनी रेसिड्यू क्लासेस हुई? आई मीन रेसिड्यू क्लास में आपके पास कितने सेट हुए? 5. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जैसे कि आप रिमाइंडर 2 वाली का सेट लिख दो, या फिर आप सारी ही रेसिड्यू क्लासेस निकाल दो, या फिर कितनी रेसिड्यू मतलब कितने सेट होंगे एक रेसिड्यू क्लासेस में, तो ये आप इजीली पता लगा सकते हो. वो तो आप डायरेक्टली ये पता लगा लो कि कितने रिमाइंडर होंगे उतनी ही सेट होंगी. So you just need to be clear with the theory and you are good to do the DMS questions. They are not at all hard if you ask to me, right? So there is a homework question for you all. इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना. Okay, so these 3 answers I need in the comment section below. But उसके पहले एक सिंपल सी चीज समझ ले. समझने वाला तो खैर कुछ भी नहीं है. ये देखो that a plus b
को आप पहले ऐड करोगे और फिर मॉड बाय एन करोगे, है ना। तो बस ये लिखा है लाइक a प्लस बी मॉड एन, a माइनस बी मॉड एन एंड a इंटू बी मॉड एन। तो हर एक का इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो a वाले के लिए ये है, b वाले के लिए ये है एंड c वाले के लिए ये है। सो दीज आर सिंपली द एग्जाम्पल टू गिव यू द ग्लिम्स। तो आप क्या करोगे, एट 7 to 14, तो आप 7 को 14 में ऐड करोगे एंड देन उसका मॉड ले लोगे 15 के साथ। देखो यहाँ अपना n की वैल्यू लिखी जाती है, तो यहाँ 15 अपनी n की वैल्यू हो जाएगी, सो इट विल बी 21 अपॉन 15। So now you tell me the remainder which you will get after doing 21 upon 15. So it's going to be 6. अब आप ना एक ये चेक कर लेना कि ये 6 मेरा सेट ऑफ रेसिड्यू के अंडर है या नहीं है। देखो मेरा सेट ऑफ रेसिड्यू क्या होगा, मेरा सेट ऑफ रेसिड्यू होगा 0 से लेकर 14 के बीच में, राइट। दिस विल बी माई सेट ऑफ रेसिड्यू। अगर मेरा 0 से कम आता है तो मेरा जो भी आंसर आया है विच विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, आपको इसमें ऐड कर लेना है मॉड्यूलस, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग यू शुड कीप इन माइंड। और अगर, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, बट अगर आपका रिमाइंडर 14 से भी एक्सीड कर रहा है, मतलब कि n-1 से भी एक्सीड कर रहा है, तो ये जो आ रहा है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन n-1। इस r को आप डिवाइड कर देना n से। देखो ऐड और डिवाइड मैं दोनों ही इसलिए कर रही हूँ सो दैट ये मेरी रेंज में आ जाए। ऐड करूंगी तो भी रेंज में आएगा, डिवाइड करूंगी तो छोटा हो जाएगा, फिर से रेंज में आ जाएगा। सो दिस इज द स्टेप विच यू हैव टू कीप इन माइंड। वैसे बड़ा तो शायद ही आएगा, नेगेटिव कई बार आता है, तो उसमें आपको मॉड्यूलस को ऐड कर देना होता है, ठीक है। अब इन तीनों के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 6 थ्योरी ऑफ टुडे। वन छोटू सी टिप टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन इज दिस वन। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए और बी बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं, तो क्या आप उन दो बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उतने बड़े नंबर को डिवाइड करोगे और छोटा या बड़ा आया तो एडजस्ट करोगे, तो दैट विल बी लाइक रियली अ बिग टास्क फॉर यू ऑल। तो व्हाट यू कैन डू इज पुट दिस फॉर्मूला। तो इसमें कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइक एक एक नंबर को ट्रीट करना है, तो पहले ए के साथ मॉड ले लो, फिर बी के साथ मॉड ले लो, फिर वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपका आंसर आ जाएगा। और अब भी अगर आपका आंसर बड़ा आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वापस से मॉड बाय एन ले लेना है। Okay, thank you so much for watching. Like this video, and if this video has cleared your concept, then do subscribe to our channel so that you never miss our new videos in the series, and share with your friends. Have an amazing day ahead.